Now we'll be doing your ship construction bow and stern regions. So here we'll be doing all panting, pounding details as well as forepeak and aft peak. Now in your bow regions, due to pounding, your additional structural strength is to be made. And as we have done the pounding, this is at the DV level, because the pounding takes place because your ship is light drafted and the vessel comes out of water and then banks again. And that region is between the collision bulkhead to 25% of ship's length forward. So the bottom shell plating adjacent to the keel, that is in this pounding region, is thicker by 15 to 30%. Let me show you a diagram first, then I'll explain. Now when your vessel comes out, it slams back again. So this region here, this region and the DV, that is from your collision bulkhead here. Collision bulkhead, I had explained that it is 5% to 7.5% from the forward collision bulkhead. So your forward perpendicular. So your forward perpendicular is here. That is where your vertical line is cutting your stem at the summer load line. That's your forward perpendicular. And the forward collision bulkhead is 5% to 7.5% aft of forward perpendicular. So the pounding region is from the collision bulkhead to an imaginary line which is about 25% of ship's length. There's an imaginary line here. So that is 25% or 30% of ship's length from forward perpendicular. So between this and this is the pounding region. So we are strengthening the plating here. So this plating has been strengthened by 15 to 30%. Not the keel. Keel is has the same strength from forward to aft. The plating next to the keel, that is your garboard strake and other strakes, that is strengthened in the pounding region by 15 to 30%. So when your length is less, the strengthening is more. When the length is more, then the thickness is less. Now we'll have the bifurcation of how the strengthening takes place in transversely framed DB and longitudinally framed DB. We have done transversely framing. There in the DB, you don't have longitudinals, you just have transverses. You have girders, but no longitudinals. So in a transversely framed DB, the longitudinal girder is fitted extending from top at a space of 2.2 meters. So the gap between the two longitudinal girder is 2.2 meters. And in between that, you have half height girders, which is at intermediate length. And the distance between the half height girder and the girder is 1.1 meter. I'll just explain with the diagram here. Now this is longitudinally framed. I'll show you another diagram where your transverse framing is done.
Now this is your transversely framed DB. So how is your pounding arrangement in this DB? So your centerline girder is going right from bottom till the top, touching the tank top. The intercostal girders are also touching the tank top. So the distance between the girders here in purple is 2.2. And in between that, you have half height girders, which is not touching the top, which is half the height of this. So this is half height girder. Suppose this is 2 meters, then this will be only 1 meter height. So the distance between this intermediate girder and the centerline girder or the other intercostal girders is 1.1 meters. ये distance दोनों के बीच में है. Now this is only for transversely framed DB क्योंकि half height girder will only come in transversely framed DB. It will not come in longitudinally framed DB. इसका screenshot ले लो समझने के लिए. Just take a screenshot of this to understand. Now this is only in pounding region, बाकी region में नहीं है. Only in pounding region half height girder आएंगे, which will be in between the two girders, the intercostal girder and the center girder, or between the other intercostal girder and this intercostal girder. Half height में आएंगे. The distance between this and this will be 1.1. Distance between the two intercostal girders and center girders will be 2.2. So this is used only in transversely framed, right? Yeah, this is only in transversely frame. Longitudinally frame में अलग से है, इसमें वैसा नहीं है. ये only in transversely frame. ठीक है, this is only in transversely frame. Longitudinally frame का अलग है. ये आपका बताया था पहले पाउंडिंग रीजन ये वाला है. ऑरेंज वाला पाउंडिंग रीजन है, विच इज इमेजिनरी लाइन, विच इज 25% to 30% here from forward perpendicular. This is collision bulkhead. इन दोनों के बीच में पाउंडिंग रीजन है, एंड पाउंडिंग रीजन की हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं एंड फॉर काउंटरैक्टिंग द पाउंडिंग स्ट्रेसेस. तो पहला था कि हमने प्लेटिंग को थिक किया by 15% to 30% depending on ship's length. The longer length, the lesser thickness is there. The smaller length, more thickness is there. So in transversely framed DB, the longitudinal girder may be fitted extending up to top at the space of 2.2 meter, and intermediate half height girder are fitted after every girder, reducing the unsupported span to 1.1 meter. का मतलब gap 1.1 meter हो जाता है. Now in transversely framed DB, your solid plate floors are fitted at every frame space. तो every frame space में solid plate floor लगता है. Solid plate floor आपको बताया था, ब्रैकेट फ्लोर नहीं, सॉलिड प्लेट फ्लोर लगेगा जिसमें मैन होल है. ठीक है, और ये ट्रांसवर्सली, ये जो सॉलिड प्लेट फ्लोर होगा ये ट्रांसवर्स वाला होगा क्योंकि ट्रांसवर्सली फ्रेम डीबी है. तो इसमें तीन चीजें आ जाती हैं. फर्स्ट थिंग इज योर thickness of the plate in the pounding region is thicker by 15 to 30%, not the keel, but the plating next to the keel, not the keel. Keel की तो thickness same है. Next to the keel, the strakes are thickened by 15 to 30% depending on the length. More the length, less the thickness. Second point, the longitudinal girders will be spaced between each other at 2.2 meter, and in between the girders you will have half height girders at space of 1.1 meter between the girder and the
half height girder. The third point is solid plate floors are fitted at every frame space. ये समझ आ गया, तो फिर हम लॉन्जिट्यूडनल पे आएंगे. इसमें किसी को क्वेश्चन है? एनीवन हैज अ क्वेश्चन? इसलिए मैंने रिपीट किया सब चीजें. ठीक है, तो विल कम टू लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीबी नाउ इन पाउंडिंग रीजन. Now longitudinally framed DB, the spacing between frame is 700 mm. वो ट्रांसवर्स फ्रेमिंग में जो फ्रेम्स है वहां भी 700 है और यहाँ भी 700 है. ये तो हमने पहले ही किया हुआ है. पाउंडिंग रीजन में स्पेसिंग बिटवीन फ्रेम इज 700, पैंटिंग रीजन में 610 mm है, बाकी रीजन में मैक्सिमम स्पेसिंग इज 1 मीटर. Second point is in longitudinally framed DB, solid plate floors are not fitted at every frame space, but एक को छोड़ के, मतलब alternate frames में लगा है solid plate floor. बीच में आपके bracket floor आएगा, क्योंकि every frame space में लगाना है ना. every frame space पे frames लगेंगे, तो एक को छोड़ के लगेगा, तो उसके बीच में bracket floor लगेगा. अब फुल हाइट गर्डर का डिस्टेंस जो होगा बिटवीन गर्डर्स वो 2.1 मीटर होगा, 2.2 नहीं होगा. सो फुल हाइट गर्डर आर फिटेड एट एवरी 2.1 मीटर, जो यहाँ लिखाई दे रहा है. तो ये लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीबी है, जिसमें सॉलिड प्लेट फ्लोर लगेगा एट ऑल्टरनेट फ्रेम स्पेसेस, उनके बीच में लगेगा ब्रैकेट फ्लोर. इसमें हाफ हाइट गर्डर नहीं लगेगा. डिस्टेंस बिटवीन फुल हाइट गर्डर्स इज 2.1 मीटर मैक्सिमम. दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? ये लॉन्जिट्यूडनली फ्रेम डीबी है, क्योंकि यहाँ देखो ये लॉन्जिट्यूडनल लगे हैं, यहाँ ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्जिट्यूडनल है. तो ये था पाउंडिंग अरेंजमेंट जो डीबीज में था. नाउ विल कम टू पैंटिंग अरेंजमेंट. तो पैंटिंग अरेंजमेंट इज forward collision bulkhead. It's in the forepeak. That is your forward collision bulkhead, including forepeak, and aft collision bulkhead, including aft peak. दो जगह होता है पैंटिंग. पैंटिंग स्ट्रिंजर आपके लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रिपिंग, अब इसमें आपके जो डायग्राम से कराते हैं उसके बाद आपको आगे कराते हैं. इसमें है पैंटिंग वाला. तो दिस इज अ forepeak फॉरवर्ड ऑफ कोलिजन बल्कहेड. ये आपका कोलिजन बल्कहेड है. कोलिजन बल्कहेड के ऊपर स्टिफनर लगे हैं. डिस्टेंस बिटवीन स्टिफनर्स इज नॉट मोर देन 760 mm, जो हमने पढ़ा था प्लेन बल्कहेड में. डिस्टेंस बिटवीन स्टिफनर शुड नॉट बी मोर देन 760 mm. आगे में चेन लॉकर है, उसके ऊपर भी स्टिफनर लगे हैं. यहाँ आपकी फ्रेम्स लगे हैं और फ्रेम का डिस्टेंस होगा 61 सेंटीमीटर मैक्सिमम. यहाँ वॉश बल्कहेड लगा है टू रिड्यूस फ्री सरफेस इफेक्ट, उसमें परफोरेशन लगे हैं. दिस इज योर पैंटिंग स्ट्रिंजर. यहाँ से ये पूरा घूम के दिस इज अ ब्रेस्ट हुक, और इनको कनेक्ट कर रहा है पैंटिंग बीम. तो एक स्ट्रिंजर 1 हो गया, स्ट्रिंजर 2 हो गया, स्ट्रिंजर 3 हो गया. यहाँ आपका स्टेम बार आ गया, यहाँ डीप फ्लोर आ गया. अभी आपको एक और डायग्राम दिखाते हैं, जहाँ ओपी का ही दिखाते हैं.
when your ships are very big, तो इंस्टेड ऑफ पैंटिंग बीम ये परफोरेटेड फ्लैट आ जाता है. तो कुछ शिप्स में कॉम्बिनेशन होता है कि पैंटिंग बीम और परफोरेटेड फ्लैट हो, और कुछ शिप्स में होता है ओनली परफोरेटेड फ्लैट नो पैंटिंग बीम, और कुछ शिप्स में होता है ओनली पैंटिंग बीम नो परफोरेटेड फ्लैट. तो ये परफोरेटेड फ्लैट का काम भी इसको स्ट्रेंथनिंग करना है, पैंटिंग बीम को, पैंटिंग स्ट्रेसेस को. तो बड़े बल्क कैरियर में यू विल हैव दीज काइंड ऑफ परफोरेटेड फ्लैट्स where your perforations are there. These are the perforations. यहाँ आपका डीप फ्लोर आ जाता है, ये डीप फ्लोर है. तो लॉन्जिट्यूडनल नॉर्मली फॉरवर्ड कोलिजन बल्कहेड के आगे जाता नहीं है. मैं डायग्राम में लिख दिया इनर बॉटम लॉन्जिट्यूडनल, वो नॉर्मली इधर लॉन्जिट्यूडनल होता नहीं. वो डायग्राम बना दिया तो ये गलत बनाया है. यहाँ फ्लोर होता है, लॉन्जिट्यूडनल नहीं होता है. यहाँ आपका स्ट्रिंजर आएगा, तो स्ट्रिंजर जो होगा वो स्ट्रिंजर प्लेट्स जो होंगी इसमें होंगी ये परफोरेटेड फ्लैट. अब आप ये देखो, एक वॉश प्लेट बनी हुई है विथ होल्स, सो दैट इज परफोरेटेड टू रिड्यूस योर फ्री सरफेस इफेक्ट. Now for panting arrangements, panting stringers are longitudinal stiffening members formed in closed rounded triangular shape, जो हमने देखा था diagram, with side stringers on both ends and collision bulkhead at the after end. And then you have a perforated bulkhead at the center line to reduce free surface effect. That is basically your wash bulkhead. So although its main function is dedicated to cargo storage and reduction of FSC, they also add to the longitudinal strength of peak tank. Now sometimes you have angle pillars along the panting beams to join to the wash bulkhead. ये आपको इस डायग्राम से दिखाते हैं, ये वाले डायग्राम्स. तो जब भी अगर आपको बनाना है प्लान ऑफ फॉरवर्ड पैंटिंग अरेंजमेंट, आपको ये डायग्राम बनाना है. Now इस डायग्राम में the thing is you have this collision bulkhead here. This is the center line of the ship. Intercostal stringer is aft of collision bulkhead, जो पतले स्ट्रिंजर हैं, बट बड़े स्ट्रिंजर जो पैंटिंग स्ट्रिंजर हैं वो आगे आ जाते हैं और फॉरवर्ड collision bulkhead. So supporting the stringer is the bracket, वो जो ये है, यहाँ आपके ब्रैकेट ये दिया हुआ है, और डॉटेड लाइंस जो है दैट इज स्टिफनर. अब ये पैंटिंग बीम आ गया जो ये है. तो अगर मैंने इसका स्लाइस काट के इसको सामने की तरफ रखा और मैंने यहाँ से सपोज इसको यहाँ से देखा, तो उसका व्यू ये है, टॉप व्यू ये है, और दिस इज द फ्रंट व्यू. दैट मीन्स वी आर व्यूइंग फ्रॉम इनसाइड द टैंक. कैसे दिखेगा? सो ये साइड फ्रेम आ गया. साइड फ्रेम पे पैंटिंग स्ट्रिंजर इज दिस वन. ये पैंटिंग स्ट्रिंजर बना है, ये पैंटिंग बीम बना है. दिस इज द वॉश बल्कहेड. तो ये वॉश बल्कहेड सीधे रहेगा बिकॉज वी आर सीइंग फ्रॉम दिस एंड, फ्रंट एंड. ये टॉप एंड है. एंगल पिलर टॉप एंड से तो ऐसे दिखेगा, फ्रंट एंड से एंगल पिलर ऐसे लगेगा. तो दिस इज द टॉप व्यू एंड दिस इज द साइड व्यू. इसके नीचे ब्रैकेट ये है, जो ब्रैकेट ये लगा है. नाउ दिस इज योर परफोरेटेड फ्लैट. अगर ये परफोरेटेड फ्लैट है तो परफोरेटेड फ्लैट में इंस्टेड ऑफ पैंटिंग बीम यू विल हैव परफोरेशंस. तो ये इंटरकॉस्टल स्ट्रिंजर आ गया, ये परफोरेटेड फ्लैट आ गया जिसमें ये परफोरेशन है, और यहाँ आपके स्टिफनर लगे हुए हैं कोलिजन बल्कहेड में, और डिस्टेंस बिटवीन स्टिफनर इज नॉट मोर देन 760 mm. ये वाले आपके ब्रैकेट्स, ये बेसिकली आपके फ्रेम्स हैं
और फ्रेम ये पैंटिंग स्ट्रिंजर ये वाला बना हुआ है और इसके नीचे जो लगा हुआ है ब्रैकेट है, सो ये ब्रैकेट लगा और नीचे डॉटेड लाइन स्टिफनर है। फ्रेम्स आपके साइड में आएंगे, दिस योर फ्रेम एंड दीज आर द परफोरेशंस। आपको एक और व्यू दिखाते हैं, वन मोर व्यू, आई शो यू कलरफुल। So this is your intercostal stringer, this is the panting stringer, उसके नीचे ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, डॉटेड लाइंस स्टिफनर, दिस इज योर कोलिजन बल्कहेड और उसके ऊपर स्टिफनर लगे हैं, दिस इज पैंटिंग बीम। और ये पर्पल में एंगल स्ट्रट और एंगल पिलर ये है। एंगल पिलर इज बेसिकली सी सेक्शन, जो आपको बताया था सी सेक्शन स्टील सेक्शंस में, तो ये सी सेक्शन टाइप का, दैट इज अटैच्ड टू योर वॉश बल्कहेड एट द सेंटर लाइन। अब ये फ्रंट व्यू है, दिस इज योर एंगल पिलर एंड दिस इज, इसमें आपका सेंटर लाइन बल्कहेड है जो परफोरेटेड है, दिस इज योर फ्रेम, बाहर शिप साइड है, पैंटिंग स्ट्रिंजर, पैंटिंग बीम और नीचे में ब्रैकेट। नाउ व्हेन वी गो टू द परफोरेटेड फ्लैट, परफोरेटेड फ्लैट में ये परफोरेशंस हैं सो दैट पानी इधर से उधर जाए लेकिन स्लोली जाए। तो ये गैप बना हुआ है, वो ये गैप है, तो ये आपका शिप साइड हो गया, साइड फ्रेम हो गया, तो शिप साइड साइड फ्रेम आया, इंटरकॉस्टल गर्डर, यहाँ ब्रैकेट्स लगे हैं, ग्रीन वाला ब्रैकेट है, दिस इज द स्टिफनर ऑन द कोलिजन बल्कहेड, दिस इज योर सेंटर लाइन, ये आपका सेंटर लाइन वॉश बल्कहेड। तो ये आपके परफोरेशन है, जो ये गैप है ये परफोरेशन। So if you want to take this screenshot ले लो, कलरफुल है, समझने में ज्यादा आसान है। एग्जाम में आ चुका है कई बार, प्रिपेयर द, कई बार आता है मेक द पैंटिंग बीम इन द फोपिक, तो फोपिक नहीं बनाना, पैंटिंग अरेंजमेंट ये बनाना। चलो वील कंटिन्यू मोर। अब इसकी थ्योरी पे आते हैं। So panting syringes are longitudinal stiffening members formed in the closed round triangular shape by the side syringes on both sides and the collision bulkhead at the aft end. Perforated bulkhead is existing at the center line. Main function is for cargo storage and reduction of FSC and providing longitudinal strength to forepeak tank. Now your angle pillars along with panting beams are joined to the wash bulkhead. So they are also very useful when unsupported span of panting beams are large. So अगर आपकी panting beam का gap ज़्यादा हो जाता है port to starboard, तो उसको angle pillar support करता है। लेकिन sometimes your large bulk carriers have got very big, quite good block coefficient. So their panting beams के बजाय we have perforated non-watertight flats to enhance your transfer strength, क्योंकि ट्रांसफर स्ट्रेंथ भी काफी चाहिए होती है बल्क कैरियर्स में। सो योर फॉरवर्ड एंड हैज गॉट परफोरेटेड फ्लैट रादर देन पैंटिंग बीम्स। तो आई बिलीव यू गॉन इन योर फोपिक टैंक, तो आपने क्या स्ट्रक्चर देखा था? पैंटिंग बीम देखा था कि परफोरेटेड फ्लैट देखा था? क्या देखा था? फोपिक में गए हो कि नहीं गए हो? यस सर, दोनों तो ही क्या देखे देखा थे था? सर। हैं? देखा ही नहीं? दोनों ही देखे थे। दोनों देखे थे। कौन सा जहाज था? टैंकर सर। हाँ, बल्क कैरियर वाला देखो, बताओ। टैंकर में दोनों दिखे, ठीक है। बल्क कैरियर में क्या कितना है? दोनों दिखे कि एक टाइप का देखा?
बल कैरियर वाले बताओ। बल कैरियर वाला कोई गया ही नहीं अंदर, ऊपर ही रहा क्या? ब्रिज ब्रिज वॉच ही रखा है क्या? है? बल कैरियर वाला कोई नहीं है? चलो फिर टैंकर वाले ज्यादा है, बल कैरियर वाले है ही नहीं। बल कैरियर में अगर बड़ा बल कैरियर है तो उसमें सिर्फ परफोरेटेड रहता है, और टैंकर में कॉम्बिनेशन हो गया। ना ब्रेस्ट हुक जो आगे दिखाए थे पैंटिंग बीम में जो लगे थे आगे, नॉट परफोरेटेड फ्लैट, पैंटिंग बीम वाले, उनमें दे आर स्टिफनिंग द स्टेम प्लेट and support the tip of panting and side stringers. Plus, they also play a very important role in transfer strengthening of large number of plates in the forward and side region. But the usability of breasthook becomes pointless when there are fin decks there. तो उस टाइम उसका इतना यूज नहीं, अदरवाइज वो पैंटिंग स्ट्रिंजर को सपोर्ट करता है और पैंटिंग स्ट्रेसेस को रिड्यूस करता है। तो ब्रेस्ट हुक आपका दिस पॉइंट इज दैट, जहां आगे ज्वाइन करता है। सो दैट इज योर ब्रेस्ट हुक। सो ये फुल वाला है, और ये डायग्राम जो है आधा बनाया है इंस्टेड ऑफ फुल, बिकॉज दोनों साइड सिमेट्रिकल एंड सो दे मेड ओनली हाफ। ये छोड़ दो, ये डायग्राम ठीक नहीं। अब आता है आफ्ट एंड में कैसे होगा। तो आफ्ट एंड का पहले स्ट्रक्चर दिखाएं, एंड ये आपके आफ्ट एंड है। तो दिस इज योर आफ्ट एंड अरेंजमेंट, जिसमें दिस इज आफ्ट पीक टैंक। आफ्ट पीक टैंक में आपका पेंटिंग अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, सिर्फ यही होगा। तो दिस इज योर स्टर्न फ्रेम, ये आपका जो बना हुआ है ये स्टर्न फ्रेम है। एंड दिस इज योर स्टर्न ट्यूब, यहाँ लगता है प्रोपेलर शाफ्ट लगेगा, और यहाँ आपका प्रोपेलर लगेगा, यहाँ आपका रडर लगेगा। सो ये वाला जो टाइप ऑफ स्टर्न फ्रेम है ये बैलेंस रडर का है। व्हेन वी डू बैलेंस रडर तब आपको सारा बताएंगे क्या क्या पार्ट है। सो यहाँ आपका स्टीयरिंग फ्लैट आता है, रडर ट्रंक है, वर्टिकल स्टिफनर्स है, ये फ्लैट ट्रांसफॉर्म स्टर्न है, फ्लैट स्टर्न। एक होता है राउंडेड और एक होता है फ्लैट। राउंडेड में गुलाई होता है, कैंट बीम्स आते हैं, वो आपको बताएंगे। और ये सेंटर लाइन बल्कहेड है, इसकी डिटेल हम आफ्टर एंड स्ट्रक्चर में करेंगे। Now, after structure में how the panting arrangement acts is, forward में panting ज़्यादा होती है, aft में panting is reduced. So the arrangement is similar as the forepeak. And one more thing is there is the cant beams, which is there only in rounded stern. तो कैंट बीम जो होती है, ये आपको पहले एक और दिखाएं स्ट्रक्चर जिसमें कैंट बीम्स आपको दिखाते हैं। लेट मी शो यू कैंट बीम्स फर्स्ट। इसमें कैंट बीम डायग्राम में नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपको पहले कैंट बीम दिखाते हैं। इसमें नहीं है, फिटिंग्स में थी क्या? फल स्ट्रक्चर में नहीं थी, इसमें नहीं।
इसी में होना चाहिए। हाँ, ये डायग्राम है। अब ये देखो, ये फ्लैट स्टर्न है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म स्टर्न, और यहाँ राउंडेड स्टर्न है। तो ये राउंडेड स्टर्न होता है, तो ये जो फ्रेम्स लगे हुए हैं साइड में, हमारे यहाँ ऐसे लगे होते हैं सीधे सीधे, ये राउंडेड में लगे हैं, और इनके साथ कनेक्टेड होता है कैंट बीम्स। तो ये राउंडेड स्टर्न में कैंट बीम्स लगेंगे विद द कैंट फ्रेम्स। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ कैंट बीम्स का, मैंने बनाया था। तो ये वाला, जैसे ये राउंडेड स्टर्न है, ये जो बीम ऐसे लगे हैं जैसे हमारी चक्रील बनी हुई है तिरंगे में, तो ये जो स्पोक्स लगे होते हैं इसको हम कहते हैं कैंट बीम, और जिससे कनेक्टेड होते हैं वो कैंट फ्रेम है। तो राउंडेड स्टर्न जो होता है, जैसे आपका पैसेंजर शिप में होता है, पुराने टाइप के जनरल कार्गो में थे राउंडेड, आजकल वाले फ्लैट स्टर्न है। तो फ्लैट स्टर्न में यू विल नॉट हैव कैंट बीम्स। तो कैंट बीम जो है वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेंथ भी देगा और ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ भी देगा, बट ट्रांसफॉर्म स्टर्न ओनली ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ देगा, लॉन्जिट्यूडनल नहीं देगा। तो ये आपका कैंट बीम है। एक और डायग्राम मैंने बनाया था यहाँ। So cant beams are found in vessels having rounded stern like passenger ship. तो ये जो डंडी लगी हुई है ये कैंट बीम्स है, और जहां से कनेक्टेड है वो कैंट फ्रेम। हमारा ये ओवरहैंग ऑफ स्टर्न होता है, पूप के नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज ओवरहैंग ऑफ स्टर्न। So one of the interesting features in the aft area for rounded sterns are cant beams. They provide longitudinal as well as transverse strength to the arrangement. ये poop deck के नीचे आएंगे, poop deck के नीचे कैंट बीम लगी होती है अगर राउंडेड स्टर्न हो तो। These are radial in structure and directly welded to shell plating, giving a kind of web frame structure. So these are attached to cant frames which provide additional strength. Plus you have solid floor existing at every frame space, which are connecting to centerline girder. And then twin decks along with upper poop deck is provided with adequate stiffening so that it gets more longitudinal strength. Then you will have stringers joining the first main frame, while deck girders are supporting the deck plating in the poop deck. Now in some vessels, panting stringers are present in the aft peak and the spacing between them is 2.5 meters. Forward में panting beams जो हैं उनके बीच में panting stringers जो होते हैं forward में, और जो panting beam के साथ connected होते हैं, दो spacing is 2 meters. और अगर वो परफोरेटेड फ्लैट हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस होता है 2.5 मीटर। लेकिन आफ्ट में पैंटिंग स्ट्रिंजर्स के बीच का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस 2.5 मीटर होता है। ये डिफरेंस है फॉरवर्ड एंड आफ्ट। एज कंपेयर टू बॉ कंस्ट्रक्शन, ट्रांसवर्स फ्रेम्स आर मोर इन गर्थ एंड डेप्थ आफ्ट। इसका मतलब जो आफ्ट पीक में ट्रांसवर्स फ्रेम जो लगे हैं उनका थिकनेस ज्यादा है और उनकी गहराई भी ज्यादा है। One more point to be noted that whenever you have a transform stern instead of rounded stern, then you don't have cant beams. Cant beams will only be in rounded stern, not in flat stern.
So the transom plate will be well stiffened vertically to resist local loads in commendable structure. या भी ये जरा मैं आपको उसमें YouTube इसमें भी दिखा देता हूँ राउंडेड स्टर्न क्या होता है इन गूगल बाय एक्चुअल फोटोग्राफ एंड ट्रांसोम स्टर्न भी दिखा देता हूँ. ये वाला जो है ये फ्लैट स्टर्न है. ये कहाँ गया? इसमें राउंडेड में ये दिखा दिया. ये फ्लैट स्टर्न है और राउंडेड आपको दिखा रहा. राउंडेड किधर गया? ये वाला जो नॉर्मल आपके टैंकर उसमें होता है फ्लैट स्टर्न. और ये जो देखा आपने कहाँ गया? जैसे ये टग का राउंडेड स्टर्न है, ये पैसेंजर शिप का राउंडेड स्टर्न है. अब इसमें पूप डेक बहुत बड़ा होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए कैंट बीम लगाया जाता है. अभी देखते हैं कैंट बीम्स का इधर कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो आपको दिखाते हैं. कैंट बीम्स इन पैसेंजर शिप. तो ये जो है ऐसा वाला आपका कैंट बीम्स आएगा. ये वाला फ्लैट स्टर्न का है और ये कैंट बीम्स इसमें लगा है. ये वाला ये बना हुआ कैंट फ्रेम. ये वाला देखो डायग्राम बना हुआ, इसके नीचे ऐसे राउंडेड में लगा है तो कैंट फ्रेम्स ये लगा हुआ, ये यहाँ लगा है. गोलाई अगर होती है तब लगेगा, अदरवाइज नहीं. और डायग्राम देखते हैं इसमें है कि नहीं. पैसेंजर कैंट भी में ये आ गया. ये वाला ये जो चक्कर गोलाई गोलाई में आ रहा है दैट इज कैंट बीम. तो कैंट बीम्स ये वाली हैं और ये जो जिससे कनेक्टेड है वो कैंट फ्रेम्स है. इसमें आपको कैंट बीम्स मिलेंगी ये वाले स्ट्रक्चर में. यहाँ यहाँ कैंट बीम्स मिलेंगी. ये आपका राउंडेड स्टर्न है तो यहाँ जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो कैंट बीम्स है. आपको यहाँ भी दिखाते हैं. ये आपकी टैंक बना हुआ है. तो यहाँ आपके नॉर्मल बीम्स लगे हैं और अगर गोलाई होती है तो कैंट बीम यहाँ लगेगी. शिप कंस्ट्रक्शन में तो बहुत स्टडीज करनी पड़ती है, इसलिए तो अंडरस्टैंड की चीज क्या है. बाकी आपको डायग्राम नहीं मिलेंगे इसमें नेट पे. वो आपको डायग्राम मिल गया बस वही बहुत है. हाँ क्या बोल रहे थे? अब आएगा स्टर्न फ्रेम. तो स्टर्न फ्रेम का जरा आपको डायग्राम समझा दें यहाँ से. वैसे तो आएगा ही आपका.
तो स्टर्न फ्रेम बेसिकली ये जो सेक्शन आ रहा है इसको स्टर्न फ्रेम कहते हैं। ये जो सेक्शन आया ना, ये स्टर्न फ्रेम है। तो ये आपको दिखा देते हैं, ये आपका 3D स्ट्रक्चर आ गया। अब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आया है ना, ये स्टर्न फ्रेम है। तो यहाँ जो है ये अनबैलेंस रडर है, जहाँ कनेक्टेड है ये अनबैलेंस रडर का है, और ये सेमी बैलेंस रडर का टर्न फ्रेम है। तो यहाँ का सोल पीस ये वाला जो है, यहाँ आपका सपोर्ट होता है आपकी का, यहाँ आपका प्रोपेलर पोस्ट है, प्रोपेलर को सपोर्ट करता है, ये आर्क है, और इसमें सिंगल स्क्रू मतलब एक ही प्रोपेलर लगेगा, यहाँ रडर लगेगा। एंड ये वाला जो है ये सेमी बैलेंस का है। ये मैं आपको बैलेंस सेमी बैलेंस ये बाद में बताऊंगा। और ये आपके स्टर्न्स दिखाए हुए हैं, कैंट फ्रेम्स यहाँ लगाया हुआ है, ये देखो कैंट फ्रेम्स लगाया हुआ है, और यहाँ आपके नॉर्मल फ्रेम्स हैं, और ये कैंट फ्रेम्स ये लगे हैं। तो जो बीम यहाँ लगा हुआ है वो कैंट बीम्स है, ये नॉर्मल बीम्स। आफ्ट एंड अरेंजमेंट में अब आपको समझाएं, ये आपको डायग्राम कई बार आ चुका है। तो आफ्ट एंड अरेंजमेंट में आपका जो वर्टिकल स्टिफनर यहाँ लगा है, बिकॉज दिस इज फ्लैट स्टर्न, तो इसमें आपके राउंडेड नहीं है, ये फ्लैट है, तो इसमें सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर होगा। सॉलिड फ्लोर यहाँ होगा, रडर ट्रंक होगा, जिससे रडर ट्रंक के थ्रू आपका जो रडर का सेक्शन यहाँ जाता है फॉर द स्टीयरिंग गियर, तो मैसेजेस जाते हैं। अभी आपको रडर जब कराएंगे, रडर ट्रंक एंड अदर पार्ट्स वी विल बी डूइंग व्हेन वी डू रडर। ये आपका टर्न फ्रेम आ गया, ये स्टर्न ट्यूब आ गया, ये कास्ट सोल पीस है जो इससे कनेक्टेड है, ये बैलेंस रडर को सपोर्ट करता है। दिस इज योर स्टर्न ट्यूब, यहाँ कनेक्टेड है, इसके नीचे अंदर प्रोपेलर शाफ्ट है, ये आउट पीक है। दीज आर द वॉश प्लेट्स, और ये आपका सेंटरलाइन बल्कहेड है। तो ये डायग्राम आपको कई बार आ चुका है। आफ्टर अरेंजमेंट में ये बनाना है। आज यहीं तो रुकते हैं, बिकॉज ज़्यादा करने से फिर मुश्किल हो जाएगा आपको समझ, है ना। इतना बहुत है आज के लिए, हमारे पास बहुत टाइम है, आपके रिविजन्स कराने के लिए बहुत टाइम है। तो आपका कोर्स भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो आपको सारे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे आप ही के कोर्स में। जैसे सीनियर बैच को हो गया, उनका रिवीजन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट रिवीजन भी खत्म हो गया है, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही है। चलो वील टेक अ ब्रेक नाउ, जो अपना चाय पीना या ब्रेकफास्ट खाना है वो खा लो, राइट। तो वील टेक अ ब्रेक नाउ। ओके सर, थैंक यू थैंक यू सर। राइट, थैंक यू सर। नोट्स आपको मिल गए होंगे।